دوستوں بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ حاضر ہے۔ آپ کی سپورٹ اور ویڈیو پر لائک اور چینل پر سبسکرائب دیکھ کر تمہارے لیے لانگ ویڈیو بنانے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ امید ہے یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ چلتے ہیں آپ آج کی مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ صوفی کا خیال آتے ہی مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی کہ صوفی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ مجھے یوں بے فکر ہو کر یہاں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، مگر میں بے بس تھا۔ نہ تو صوفی کے پاس جا سکتا تھا اور نہ ہی ہریانہ جا کر جرنیل سنگھ کے گھر جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں سے بھی 3-4 دن غائب رہنے کا پیغام مل چکا تھا اور دوبارہ کال کرنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید اس ملک میں نہیں رہوں گا۔ جیسے ہی امرتسر صوفی کے پاس پہنچوں گا، چاہے وہاں کے جیسے بھی حالات ہوں، میں صوفی لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے پیارے وطن لوٹ جانا ہے۔ ان خیالوں میں ڈوبا کیا سرائیاں کرتے ہوئے مختلف منصوبے بنائے جا رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھولتے دیکھ کر خیالوں کی بستی سے نکل کر دروازے سے نمودار ہونے والے جلوہ افروز منظر نے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ سلکی گولڈن بالوں کو کندھوں پر کھلا چھوڑ کر، سرخ رنگ کی ڈریس میں پینسل ہیل پہنے ہوئے ماڈل کی طرح ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر، کمر پر ہاتھ رکھ کر دروازے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑی میری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، واؤ سو بیوٹیفل۔ میرے الفاظوں کی ادائیگی دیکھ کر پریتی ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کمر لچکا کر چلتی ہوئی میری جانب بڑھنے لگی۔ پریتی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں بے اختیار بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ پریتی مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ادا سے بولی، کیسی لگ رہی ہوں؟ میں رومانٹک انداز میں پریتی کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، یہ پوچھو کیا کیا نہیں لگ رہی ہو؟ حسن تو پہلے ہی کم نہیں تھا، اس لباس نے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پریتی کی کمر پر بازو ڈال کر کمر پر ہاتھ رکھ کر پریتی کو جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ پریتی لڑکھڑانے کے انداز میں میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بالوں کو لہراتے ہوئے میرے چہرے کے سامنے چہرہ کر کے مخمور کن آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میں پریتی کی نشیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے رومانٹک انداز میں بولا، تمہاری ان جھیل سی گہری آنکھوں کی قسم، تمہارے ان کھولتے گلاب ہونٹوں کی قسم، تم قیامت ڈھا رہی ہو، تم سر سے پاؤں تک حسن کا مجموعہ ہو۔ پریتی میرے بازو میں پیچھے کی جانب لٹکتے ہوئے اپنی سراہی دار گردن کو لمبا کر کے بولی، یہ بدن تو کیا، اس بدن میں جو روح سمائی ہے، اس روح کے بھی تم مالک ہو، یاسر آج مجھے اپنا لو۔ کہا میں پریتی کو بازو میں اٹھا کر بیڈ کی جانب چل پڑا۔ پریتی میری گردن میں بازو ڈال کر نشیلے انداز میں میری جانب دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے پریتی کو بیڈ پر لٹکا کر پریتی کے پیروں کے قریب بیٹھ کر اس کے پیروں کے ناخنوں پر لگی سرخ نیلی پالش کو دیکھنے لگ گیا۔ گورے پیروں پر سرخ نیل کمال کی خوبصورتی لگ رہی تھی۔ ہم دونوں صبح دیر تک سوئے رہے۔ پریتی نے ہی مجھے اٹھایا اور نہا کر فریش ہونے کا کہا۔ کچھ دیر بعد نہا کر فریش ہونے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ پریتی کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ میں صوفے پر بیٹھا ریموٹ سے ٹی وی کے چینل بدلنے میں مصروف تھا۔ اسی دوران ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر نارمل انداز میں دروازے کی جانب دیکھا۔ جیسے ہی میری نظر پڑی میں ایسے صوفے سے اچھلا جیسے صوفے کے اندر لگے سپرنگوں نے مجھے اوپر اچھال دیا۔ یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے ریموٹ بھی گر گیا اور میں صدمے کی حالت میں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر دروازے پر پڑی میں صوفے سے ایسے اٹھا جیسے صوفے کے اندر سپرنگ لگے ہوں اور انہوں نے مجھے اوپر اچھال دیا ہو، اور یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے ریموٹ بھی گر گیا اور میں سکتے کے عالم میں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دوسری طرف دروازے میں ڈارک گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس منمیت کور سکتے کی حالت میں آنکھیں پھاڑے ناقابل یقین انداز میں مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ بھی نیچے گر چکا تھا۔ چند لمحوں کی کیفیت کے بعد منمیت کور نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ کر شاک ہونے والے انداز میں چیختے ہوئے کہا، او مائی گاڈ یاسر تم یہاں! یہ کہتے ہوئے وہ بچوں کی طرح خوشی سے اچھل بھی رہی تھی جیسے اسے نہ جانے کتنی بڑی خوشی مل گئی ہو۔ چند لمحے اسی پوزیشن میں منمیت کور رہنے کے بعد منمیت کور قربان جانے والے انداز میں میری طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ میں نے بھی اس کے استقبال میں بازو کھول دیے۔ منمیت کور میرے قریب آتے ہی اچھل کر میری گردن میں بازو ڈال کر، یاسر میری جان تم آ گئے، یہ کہتے ہوئے منمیت کور سینے کے ساتھ چپک کر بچوں کی طرح رونے لگ گئی۔ اسی دوران منمیت کور کی چیخ کی آواز سن کر پریتی دوڑتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ جب پریتی کی نظر مجھ سے لپٹی منمیت کور پر پڑی تو وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ میں منمیت کور کی کمر میں بازو ڈالے ہوئے نظر چرا کر پریتی کی کیفیت بھی دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا
और एक रंग जा रहा था उसके अरमानों पर पानी फिरने की वजह से। इसके चेहरे पर गुस्सा, दुख, तकलीफ सब कुछ नुमायां हो रहा था। मनमय्यत कौर जैसी रुख मालिक जुटी को बाजू में भरकर मेरी कैफियत बदलना शुरू हो गई थी। मनमय्यत कौर पूरी तरह मेरे साथ चिपकी हुई थी, इसकी कमर मेरे बाजू की गिरफ्त में जकड़ी हुई थी। मनमय्यत कौर के इस तरह के रिएक्ट की मुझे हरगिज भी तवक्को नहीं थी। वो तो ऐसे मुझसे लिपटी हुई थी जैसे मैं इसका प्रेमी हूं। हालांकि मेरे दिल में मनमय्यत कौर की हैसियत एक अच्छे दोस्त के सिवा कुछ नहीं थी, और इससे दोस्ती की वजह, इसकी मजलूमियत से, इसकी जुदाई के बाद, इसके बिछड़ने तक के हालात से आप सब अच्छे से वाकिफ हैं। मनमय्यत कौर को देखकर मुझे भी खुशी हो रही थी। इसको बाजू में भरकर सीने से लगाते ही मेरे भी जज्बात भड़क उठे थे। मगर जैसे मनमय्यत कौर को बेचैनी थी वैसे मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। इसे देखकर चौंकने की वजह भी सिर्फ अचानक से इसकी गैर मुतवक्के आमद थी। मनमय्यत कौर की आंखों से निकलने वाले खुशी के आंसुओं ने मेरे कंधे से कमीज गीली कर दी थी। उसके जज्बात बता रहे थे कि वो मेरे लिए कितनी बेचैन थी। इसने तो तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि मैं इसे यूं अचानक से प्रीति के घर में मिल जाऊंगा। उसके लिए ये एक बड़ा सरप्राइज से कम नहीं था। मनमय्यत कौर मुझसे लिपटे रोते हुए कहती जा रही थी, यासिर तुम कहाँ चले गए थे? तुमने आने में इतनी देर लगा दी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारे इंतजार में ये दिन मैंने कैसे गुजार रहे हैं। हर लम्हा तुम्हें याद करती रहती थी, तुम्हारे आने की दुआएं मांगती रहती थी। मेरा दिल कहता था कि तुम मुझसे जरूर मिलने आओगे। मैं मनमय्यत कौर की कमर को सहलाते हुए बोला, देख लो तुम्हारे दिल की कही हुई बात सच साबित होगी। वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था कि अगर जिंदगी ने मौका दिया तो एक दफा तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, मगर जब मैं यहाँ आया तो तुम यहाँ से जा चुकी थी। मनमय्यत कौर मेरी गर्दन से बाजू निकालकर मेरे चेहरे को अपने नर्म हाथों में लेकर हसरत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए बोली, मैंने कितने दिन तुम्हारा इंतजार किया। मेरे लिए होता था, सुबह शाम रू रू कर दुआएं करती थी कि तुम जहां भी हो सही सलामत हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी कि ना जाने तुम किन हालात का सामना कर रहे हो। मैं तो कुछ दिन पहले ही खाला के घर चली गई थी। अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता कि तुमने आना है तो मैं कभी भी ना जाती, मगर देख लो किस्मत ने मुझे तुमसे मिलाना था, इसलिए किस्मत मुझे वापस तुम्हारे पास खींच लाई। ये कहकर मनमय्यत कौर वालिहाना अंदाज में मेरे चेहरे को चूमने लग गई। इसी दौरान प्रीति की आवाज ने मनमय्यत कौर को चौंका दिया। प्रीति मसनूई मुस्कुराहट के साथ अंदाज में सदके वारे जाते हुए बोली, वाह भाई वाह, क्या बात है जनाब की यासिर से मिलकर करीब खड़ी अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी भूल गई। वैसे कमाल की बात नहीं कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं। मनमय्यत कौर चौंक कर मेरे रुखसारों को छोड़कर प्रीति की जानिब मुतवज्जे होते हुए बोली, सॉरी प्रीति, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। प्रीति तंजा अंदाज में बोली, देखती भी कैसे, जिसके लिए दिन रात तड़पती रहती हो वो जो नजर आ गया अब किसी और जानिब नजर कैसे जा सकती है। मनमय्यत कौर अभी भी प्रीति के तंजा अंदाज को समझ नहीं सकी थी, जबकि प्रीति के लहजे और उसकी बातों में छुपे हुए तंजा निश्तरों को मैं अच्छे से महसूस कर रहा था। और इस वक्त मनमय्यत कौर प्रीति को नागवार क्यों गुजर रही थी, इसकी वजह भी मुझे अच्छे से मालूम थी कि असल मालिक के आने के बाद कब्जा ग्रुप की छठी हो जाती है, और इस छठी होने की जितनी तकलीफ हो रही थी, जबकि मनमय्यत कौर के साथ ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था। इस सब के बावजूद मनमय्यत कौर का बड़ापन था कि वो इसके तंज को मजाक समझकर मुस्कुराते हुए मेरे हाथों को पकड़ कर बोली, इसमें कोई शक नहीं, जिसके लिए मिन्नतें मांगती रही थी आज वो मेरे सामने है। ये कहकर फिर मेरे हाथ छोड़कर प्रीति की तरफ बढ़ते हुए इसके गिले मिलने लगी। मनमय्यत कौर प्रीति के साथ बड़ी गर्म जोशी से मिलकर बोली, ओ प्रीति, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में यासिर का ख्याल रखा। प्रीति फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए बोली, दोस्त होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता था कि तुम्हारे दोस्त को भी इतनी ही इज्जत दो कि जितनी तुम्हें देती हूं। बाकी फिर भी तुम अपने यासिर से पूछ सकती हो कि जनाब की खिदमत में किसी किस्म की कमी तो नहीं आने दी। मनमय्यत कौर मोहब्बत भरे अंदाज में प्रीति के गाल चूमते हुए बोली, सो स्वीट हार्ट डार्लिंग, मुझे पता है तुम भी यासिर की बहुत इज्जत करती थी और उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। चलो मुझसे पहले तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये कहकर मनमय्यत कौर वापस मेरी जानिब पलटते हुए बोली, कब आए थे यासिर? मैंने कहा, मुझे तो 3 दिन हो गए हैं। मनमय्यत कौर ताज्जुब का इजहार करते हुए बोली, वह तुम्हें 3 दिन हो गए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। ये कहकर मनमय्यत कौर खफगी का इजहार करते हुए प्रीति की जानिब देखकर बोली, इट इज नॉट फेयर, ये क्या बात हुई? कम अज कम तो मुझे कॉल करके बता तो देती कि यासिर आया है। मैं जाते हुए तुम्हें ताकीद करके गई थी कि अगर मेरे जाने के बाद यासिर की कॉल आए या वो घर आए तो
मुझे इसी वक्त कॉल करके बता देना। वो मनमयत कौर की बात सुनकर मैंने चौंकते हुए प्रीति की जानिब देखा, जो मुझसे अपना झूठ छुपाने के लिए कोई बहाना तराश रही थी। प्रीति के चेहरे पर शर्मिंदगी, उलझन साफ तौर पर नजर आ रही थी। प्रीति की मुझसे नजर मिली तो मुझसे नजरें चुराते हुए मनमयत कौर की तरफ देखकर बात बनाते बोली, सॉरी यार, मैंने 2-3 दफा नंबर ट्राई किया था मगर कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं समझी शायद नंबर गलत है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने दोबारा ट्राई नहीं की। ये कहकर प्रीति बड़ी मक्कारी से मनमयत कौर का ध्यान हटाते हुए इसके कंधों को पकड़कर बोली, कम उन यार, आते ही गिले शिकवे शुरू कर दिए। यासिर क्या सोचेगा, इतने दिनों बाद मिली हो, इससे प्यार भरी बातें करो। मनमयत कौर बेचारी को मेरे आने की इतनी खुशी थी कि वो प्रीति के झूठ को सच मानकर मेरी जानिब देखकर बोली, यासिर खाला के घर का नंबर तुम्हारे पास भी तो था। अगर इस लापरवाह लड़की ने दोबारा ट्राई करना जरूरी नहीं समझा तो तुम ही मुझे कॉल कर लेते। मैं कुछ कहने लगा था कि प्रीति मनमयत कौर से नजर बचाकर हाथ जोड़ते हुए मुझे झूठ बोलने का कहने लगी। मैं झट से बात बदलते हुए बोला, बिल्कुल मेरे पास नंबर था मगर यार तुम्हें बताया तो था कि मैं कौन हूँ और कुछ मुश्किलात में घिरा रहता हूँ। बस इसी चक्कर में मेरा एक जगह पिंगा हो गया था। इसी दौरान मेरा पर्स भी गिर गया था जिस में पैसे वगैरह भी थे और वो पर्ची भी। ये तो शुक्र था कि प्रीति का घर का नंबर मुझे याद था, वरना शायद मैं यहाँ तक भी ना पहुँचता। मेरी बात खत्म होती ही मनमयत कौर के कुछ बोलने से पहले प्रीति खफगी का इजहार करते हुए बोली, यार क्या हो गया है, तुम तो आते ही पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करना शुरू हो गई हो। कम उन यार, अगर यासिर ने 2 दिन मेरे साथ गुजार लिए तो क़यामत तो नहीं आ गई। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। मनमयत कौर बोली, नहीं प्रीति, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ऐसा सोचती होती तो तुम्हारे घर का नंबर ही क्यों देती। यासिर के बारे में मेरी फजरगी है, तुम इसको अच्छे से जानती हो। मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरी जिंदगी के सबसे हसीन 2 दिन ज़ाय हो गए हैं। प्रीति बोली, अच्छा दफा करो उन बातों को। अभी यासिर कौन सा कहीं भागा जा रहा है, अपने हसीन दिनों को एंजॉय कर लेना। मैं यासिर के लिए नाश्ता बना रही थी, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। ये कहकर प्रीति किचन की जानिब चली गई। मनमयत कौर को अचानक अपनी बैग का ख्याल आया तो वो मेरी जानिब देखकर सॉरी कहकर बैग उठाने चली गई। मनमयत कौर की कॉल वाली बात सुनकर मुझे प्रीति पर गुस्सा बहुत आया कि इसने अपनी हवस पूरी करने की खातिर किस तरह चालाकी से मनमयत कौर को मेरी आमद से बेखबर रखकर इसे साइड पर कर दिया। और मुझे भी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि मनमयत कौर जाते हुए इसे किस बात की ताकीद करके गई है। हालांकि मनमयत कौर की काफी तफसील से बात हुई थी, फिर भी प्रीति ने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, बल्कि मनमयत कौर के कुछ हालात इस अंदाज में बयान किए कि मैं कहीं खाला के घर कॉल करने का ना कह दूं। मनमयत कौर बैग उठाकर वापस मेरे पास आकर बैठने का कहकर फ्रेश होने के लिए प्रीति के बेडरूम के साथ वाले कमरे में चली गई। जैसे ही मनमयत कौर कमरे में दाखिल हुई, प्रीति किचन से निकलकर तेज तेज कदम उठाती हुई मेरे करीब आकर बोली, यासिर एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखकर बोला हूं कि क्या हुई। प्रीति बोली, हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ प्लीज इसका जिक्र मनमयत कौर से मत करना। इसे जैसे भी कन्विंस कर सकते हो कर लेना, मगर हमारे बीच होने वाली कोई बात भी इसके साथ शेयर मत करना। मैंने कहा कि वो कि नहीं करता और कुछ। प्रीति बोली, बस यही कहना था। और हाँ, एक और बात याद आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी जल्दी बता दो कहीं। मनीत प्रीति छेनुकते हुए बोली, ऐसी भी बात नहीं है, मैं इससे डरती नहीं हूँ, बस दोस्ती का लिहाज है। मैंने कहा, अच्छी बात है, मुखलिस दोस्त कीमती सरमाया होते हैं, उनको खोना नहीं चाहिए। वैसे भी मेरा किया है, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊं और ये भी मुमकिन है कि हमारी ये आखिरी मुलाकात हो। मेरी बात सुनकर प्रीति कुछ कहते कहते बात बदलते हुए बोली, हाँ वो मैं कहने लगी, ठीक है, अगर मनमयत कौर तुमसे कुछ फरमाइश करे तो प्लीज इनकार मत करना। प्रीति की बात सुनकर मैं चौंकते हुए बोला, कौन सी फरमाइश। प्रीति बोली, अभी कबल अज वक्त में कुछ नहीं कह सकती। ये कहकर प्रीति दरवाजे की जानिब देखकर चौंकने के अंदाज में बोली, ओके मैं नाश्ता बना लूं, मनमयत भी बाहर आने वाली होगी। मैं ज़हन में सोचते हुए बोला, अरे बात तो सुनो। मगर प्रीति नाश्ता बनाने का इशारा करते हुए किचन में चली गई। प्रीति की इस बात ने मुझे उलझन का शिकार कर दिया कि मनमयत कौर की फरमाइश पूरी कर देना। मैं क्या सोच रहा था कि आखिर कौन सी फरमाइश है, कहीं मुझे मजीद कुछ दिन रोकने का प्लान तो नहीं, या फिर मनमयत कौर कुछ करने की फरमाइश कर सकती है। मगर जब वो आ गई है तो मुलाकात तो लाजमी होगी। इसमें फरमाइश करने वाली कौन सी बात है। अगर ये नहीं तो फिर मनमयत कौर आखिर कौन सी ऐसी फरमाइश कर सकती है जिसका जिक्र प्रीति करके गई है।
इससे पहले कि मैं मजीद दिमाग पर बोझ डालता मनमयत कौर दरवाजे से निकलती नजर आई। इसे देखकर मैं सर झटक कर नॉर्मल होकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इसका चेहरा खुशी से खुला हुआ था। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आकर बैठ गई। बैठते ही मनमयत कौर ने मेरे बाजू के नीचे से हाथ गुजार कर मेरे बाजू को अपना बाजू की शिकंजे में लेकर मेरा हाथ पकड़कर अपना सर मेरे कंधे पर लगाकर बोली, यासिर, तुमसे बिछड़ने के बाद से लेकर अभी तुम्हें देखने से पहले तक मेरी जिंदगी वीरान सी थी। मुझे जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था, बस इसी बेजान जिस्म का बोझ लिए फिर रही थी। मगर जैसे ही मेरी पहली नजर तुम पर पड़ी, इसी वक्त मेरे जज्बात भर आए थे। काश मैं अपनी अफसुर्दगी तुमसे शेयर कर सकती। इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे जीने की उम्मीद नजर आ गई है, मेरी बेजान जिस्म। मैं तुमने एक बार फिर से रूह भूंक दी है। तुमसे बिछड़ने के बाद आज पहली दफा मुझे ऐसी खुशी मिली है, और खुशी भी ऐसी है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी दास्तान बता सकूं। ये कहकर मनमयत कौर ने मेरे कंधे को चूम कर कंधे पर सर रख लिया। मैं मनमयत कौर का माथा चूमते हुए बोला, जो अल्फाज जुबान बयान नहीं कर सकती वो इंसान का चेहरा और आंखें बयान कर देती हैं, और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे गालों की सुर्खी सब कुछ बयान कर रही है, इसीलिए तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मनमयत कौर फिर बोली, मैंने एक फलाही तंजीम ज्वाइन कर ली है। इसी सिलसिले में प्रीति से मिलने आई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मैंने कहा, शायद तुम्हारे नेक काम के आगाज में तुम्हें खुशी का तोहफा मिल गया। ये मनमयत कौर बोली, बिल्कुल, मैं सच्चे बादशाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी नेकी का सल्ला तुम्हारी सूरत में बख्शा है। इसी दौरान प्रीति नाश्ते की ट्रे पकड़े नमूदार होते हुए बोली, चलो भाई रूमीनस बाद में कर लेना, पहले गर्म गर्म नाश्ता कर लो। मनमयत कौर मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाश्ता तो यासिर को देखते ही हो गया था, अब तो ना भूख की फिक्र है ना प्यास की। प्रीति बोली, अच्छा अब ये सब बातें बाद में करना, पहले नाश्ता करो। मनमयत कौर मुस्कुराते हुए मेरे बाजू में से अपना बाजू निकाल कर सीधी होकर बैठ गई। कुछ देर में नाश्ता खत्म करने के बाद हमारे बीच में नॉर्मल बातें होती रही, क्योंकि प्रीति कबाब में हड्डी बनने का फर्ज अंजाम दे रही थी। इसीलिए मनमयत कौर बातों की बजाय मुझसे बिछड़ने के बाद गुजरे हुए एक एक लम्हे को दोहराते हुए अपने जज्बात का इजहार कर रही थी, जिसमें ज्यादातर बातें मैं प्रीति के मुंह से सुन चुका था। मनीत ने बताया कि इसने भटनड्डा में एक फलाही तंजीम ज्वाइन कर ली है, और उसकी खाला ने इसको खुश दिली से कबूल करते हुए इसे हमेशा के लिए अपने पास रहने की इजाजत दे दी है। इसने प्रीति को कुछ पैसे पकड़ाए हुए थे, और उसका कुछ सामान भी उधर पड़ा हुआ था। वो प्रीति को फलाही तंजीम में शामिल होने की खबर देने के साथ इससे पैसे और अपनी चीजें लेने आई थी। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इसकी मुलाकात मुझसे हो जाएगी। बातों के दौरान मैंने कई दफा सोचा कि इसके बाप और भाइयों के बारे में बता दूं कि मेरी जान उनसे मुलाकात हो चुकी है, और न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि इसके छोटे भाई रणवीर सिंह से मेरी इस टॉपिक पर बात भी हो चुकी है। मगर प्रीति की मौजूदगी की वजह से मैंने इस मौजू को छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। रात तक हम मुख्तलिफ मौजुआत पर बातें करते रहे। बातों के दौरान प्रीति बोली, मनमयत, तुम्हें पता है कल रात में और यासिर शॉपिंग करने गए थे, और गाड़ी भी यासिर ने ड्राइव की थी। कमाल की बात यह थी कि यासिर ऐसी गाड़ी ड्राइव कर रहा था जैसे वो हमेशा से यहाँ का रहने वाला हो। प्रीति की बात सुनकर मनमयत कौर, तो आज भी हम बाहर घूमने फिरने चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे, क्यों यासिर चलोगे ना? मैंने कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है, प्रीति से पूछ लो। मनमयत कौर प्रीति की जानिब देखा तो प्रीति खुशी का इजहार करते हुए बोली, अरे भाई ने की और पूछ। मनमयत कौर खुश होते हुए बोली, ओके फिर डन, इसी बहाने मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। मैंने चौंक कर मनमयत कौर की तरफ देखते हुए कहा, कौन सा सपना? मनमयत कौर बोली, मैं अक्सर सोचती थी कि जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो तुम्हारे साथ बाहर घूमने फिरने जाऊंगी, तब तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे होगे और मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी और हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। प्रीति खफगी का इजहार करते हुए बोली, यानी मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन रही हूँ। मनमयत कौर गुस्से से प्रीति की तरफ देख कर बोली, क्या बकवास कर रही हो? ये तुम किस तरह की फजूल बातें कर रही हो? तुम अच्छे से जानती हो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, फिर ऐसी बात करने का क्या मकसद है? इससे पहले कि दोनों में किसी किस्म की बहस छिड़ जाती, मैं उठते हुए बोला, ओके तो फिर हम तीनों जा रहे हैं और अभी निकल रहे हैं। टाइम देखो 10 बज चुके हैं। मेरी बात सुनकर मनमयत कौर प्रीति की तरफ देखकर बोली, चलो उठो। प्रीति मासूम सा चेहरा बनाकर उठकर खड़ी होकर बेडरूम की जानिब चली गई। इस सब के दौरान मैंने एक बात नोट की, मनमयत कौर का प्रीति पर अच्छा खासा प्रेशर था। ये प्रेशर गहरी दोस्ती का था।
किसी और चीज का था। जो भी था, अगर बातों के दौरान जब भी मनमय्यत कौर प्रीति को डांट भी देती थी और प्रीति इसका गुस्सा भी नहीं करती थी। प्रीति के जाने के बाद मैंने मनमय्यत कौर को कह दिया, वैसे तुम्हारा प्रीति पर बड़ा रोब है। मनमय्यत कौर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में हमारी गहरी दोस्ती होने की वजह से हम दोनों में फ्रेंडशिप की बहुत है, इसलिए हम एक दूसरे को जो मर्जी कह ले, अगले की बात का गुस्सा नहीं करती। मैंने ये कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। मनमय्यत कौर बोली, इसमें कोई शक नहीं, प्रीति मेरी सबसे अच्छी और मुखलिस दोस्त है। वो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकती है और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये अलग बात है कि वो थोड़ी लापरवाह किस्म की है। इतने में प्रीति अपना हैंड बैग उठाए हुए बोली, जरूर मेरी ही बात हो रही होगी। मैं बोला, हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात हो रही थी, मगर तुम्हारी बात नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्ती की तारीफें के पिल भांदे जा रहे थे। प्रीति मुंह बिसूरते बोली, जाने दो यार, मनीत और मेरी तारीफ करे ये तो नामुमकिन वाली बात है। ये तो जब तक मेरी बुराई ना कर ले इसे खाना हजम नहीं होता। मनमय्यत कौर हंसते हुए बोली, अभी वैसे खाना खाया नहीं, इसीलिए मजबूरी में तुम्हारी तारीफें कर रही थी। अब खाना खाने के बाद तुम्हारी बुराइयां करके खाना हजम करूंगी। मनमय्यत कौर की बात सुनकर मुझ समेत प्रीति भी कहकहा लगाकर हंसने लगी। मैं हंसते हुए मनमय्यत कौर की तरफ देखकर बोला, वाह यार, तुम तो फनी भी हो, वरना मैं तो तुम्हें संजीदा लड़की समझता था। प्रीति झट से बोली, ये तो वाकई संजीदा थी, मगर जब से तुम्हारे साथ उसकी मुलाकात हुई है तब से ये फनी भी हो गई है। लगता है मुलाकात के दौरान खान का कुछ हिस्सा इसके अंदर चला गया है। प्रीति की जुबानी खेज बात सुनकर मनमय्यत कौर टेबल पर पड़ा डब्बा उठाकर प्रीति की तरफ फेंकते बोली, ठहर जा बदतमीज। प्रीति अपना बचाव करके खिलखिलाती हुई एक तरफ हो गई, जबकि मैं भी प्रीति की बात पर अपनी हंसी को रोक नहीं सका। कुछ ही देर बाद हम गाड़ी में बैठकर बाजार के लिए रवाना हो गए। प्रीति ने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी, सकट इसके घुटनों से भी ऊपर तक थी। मैंने अगर गुज़िश्ता रात शहर की सोसाइटी का माहौल ना देखा होता तो मुझे प्रीति का इतना शॉर्ट लिबास पहनना अजीब लगता, मगर गुज़िश्ता रात बाजार में बहुत सी लड़कियों को शॉर्ट सकट और जीन्स के साथ घूमते देख चुका था, जबकि मनमय्यत कौर ने अभी तक वही डार्क ग्रीन कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी। अगर मैं मनमय्यत कौर और प्रीति के हिस्न को कंपेयर करता तो मनमय्यत कौर शलवार कमीज में भी प्रीति से ज्यादा हसीन और पुरकशिश लग रही थी, जबकि प्रीति जिस्म की नुमाइश करने के बावजूद मनमय्यत कौर के मुकाबले में कम हसीन लग रही थी। ये मेरी निगाह का फैसला था। बाकी अगर कोई राजाता मन चला नौजवान उन दोनों को देखता तो वो प्रीति को देखकर मजबूर हो जाता, मगर मैं इन दोनों को किसी और निगाह से देखकर फैसला कर रहा था। मनमय्यत कौर मेरे साथ बैठी हुई थी, जबकि प्रीति पिछली सीट पर बैठी हुई थी। इसी दौरान प्रीति भी काफी खुशगवार मौड में थी। इसका यूं गिरगट की तरह रंग बदलना अजीब लग रहा था, वरना मुझे खदशा था कि कहीं आगे बैठने की वजह से दोनों में किसी किस्म की तकरार ना शुरू हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों फ्रेंडली माहौल में हंसी मजाक के मौड में थी। कॉलोनी से निकलकर मैंने शहर की मैन शारा पर गाड़ी डाल दी। गाड़ी ड्राइव करते हुए मनीत की जानिब देखकर बोला, हाँ जी जनाब, बताएं कहाँ जाने का इरादा है। मनमय्यत कौर मुस्कुराते हुए गियर पर रखे मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, पाकिस्तान ले चलो। मनमय्यत कौर की बात सुनकर मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा, मगर खुद को संभालते हुए मैं बात को मजाक में लेते हुए बोला, अभी तो मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं वापस जा सकूंगा कि नहीं, इसीलिए अभी हम जहां जाने के इरादे से निकले हैं इस बारे में बात करो, कहां जाना है। मनमय्यत कौर गहरी सांस खींचकर सांस छोड़ते हुए बोली, काश मेरा ये ख्वाब भी सच साबित हो जाए। खैर अभी तुम आलांती माल की तरफ चलो, वहां भंडारा रेस्टोरेंट का खाना बहुत लजीज है। प्रीति भी मनमय्यत कौर की हिमायत करते हुए बोली, भाई पहले खाना हो जाए, मुझे भी बहुत भूख लगी है, खाना खाने के बाद कहीं और घूमने जाएंगे। मैंने कहते हुए ओके कहा। मैं गुज़िश्ता रात प्रीति के साथ आलांती माल पर आ चुका था, मगर हमने वहां खाना नहीं खाया था। वैसे ही वहां कुछ देर टाइम गुजारने के बहाने आइसक्रीम खाकर हम घर वापस आ गए थे। आलांती माल का माहौल बिल्कुल लाहौर के माल रोड और गोयल मंडी के स्ट्रीट फूड जैसा था। फर्क था तो लड़कियों के लिबास का फर्क था। अब तो हमारे भी कई बड़े शहरों में काफी हद तक फैशन प्रमोट हो चुका है, मगर ये बात तब की है जब हमारे पाकिस्तान में अभी मोबाइल फोन इतना आम नहीं हुआ था और ना ही टीवी केबल का सिस्टम मंजर आम पर आया था, इसीलिए मैंने ये चीजें नोट की थी। खैर कुछ ही देर में हम आलांती माल पर पहुंच गए। होटल मैंने नहीं देखा था, इसलिए मनमय्यत कौर मेरी रहनुमाई कर रही थी।
भंडारा होटल पहुंचकर हमने खाना खाया। इस होटल के खाने की जितनी तारीफ मनमैयत कौर ने की थी, वाकई खाना काबिल तारीफ था। कुछ देर बाद हम होटल से निकलकर एक मशहूर पार्क की तरफ चल पड़े।